Good morning, all of you. So here I am again, Mridul Purohit, in a casual interaction with you all. Today's topic of interaction would be the upcoming prelims exam. हम सबको पता है कि 10 दिन बचे हैं लगभग prelims exam को, और जिसको ये नहीं पता है तो वो शायद पता नहीं करे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? So before starting, I am going to give you 5 do's and 5 don'ts, rather my version of do's and don'ts. उससे पहले मैं तुम्हें एक सक्सेस मंत्रा देना चाहूंगा. If you want to succeed in life, be obsessed with your goals and not your circumstances. देखो, don't become the victim of your circumstances, in plain and simple. ये मत सोचो कि अभी कितने adverse circumstances है. ये सोचो how better and how bright this life could be if you achieve your goal. ठीक है? Rather than discussing with your girlfriend कि आज मुझे पापा ने चप्पल से मारा, आज ये हुआ. No, nothing doing. These sort of things are not going to help us in life. Time is money. ठीक है? So this is the success mantra. Be obsessed with your goals and not your circumstances. Without wasting any time, let's start with don'ts. The first don't is don't compare yourself. As in, this is not the time to compare your performance with your friends. कि मेरे mock में इतने आए, mock 10 में इतने आए. This is not the right time. कि मेरे, और not even compare yourself with yourself. कि first 5 mocks में मेरे 125 आ रहे थे और अब मेरे suddenly 90 हो गए. भाई, there are umpteen number of circumstances that could have played role. कि पेपर टफ था, बहुत ज्यादा फैक्चुअल था, कुछ भी हो सकता है. You are not in a right state of mind. तो इस समय if you compare yourself with anyone, it would be quite fatal for our success. Second, don't be obsessed with what if thinking pattern. Generally, ये हमने भी देखा है अपने प्रिपरेशन टाइम में. If given the choice, एक पॉजिटिव चॉइस हो और एक नेगेटिव चॉइस हो और हमसे इमेजिन करने को कहें, तो जनरली क्या होगा? नेगेटिव थॉट्स टेक ओवर द पॉजिटिव थॉट्स. एज सिंपल एज दैट. ठीक है? In a general way, I would like to refute this kind of thinking by a very famous dialogue from the movie Dark Knight. Why so serious? Stop taking everything so seriously in life. Right? जो हमें करना है हम उसको अच्छे से करते रहें, एंड बहुत ज्यादा ये नहीं सोचें कि कल क्या होने वाला है, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मेरी कोई वैल्यू होगी सोसाइटी में या नहीं होगी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे अपने लोग ही मुझे पहचानने से इनकार कर देंगे. ऐसा कुछ नहीं होने वाला. ट्रस्ट मी. If you have good knowledge of this examination, even if you are not selected, there are umpteen number of career choices that you can have. और मेरे पहले ही इंटरेक्शन में मैंने तुमसे कहा था, there is one thing that civil services aspirants do not lack, and it is they do not lack courage. Fine. Third and fourth don'ts are quite related. Third don't is don't compromise on your sleep. Okay. And fourth is don't be afraid of hard work. देखो, we have 24 hours. इस समय मैं तुम लोगों से ये कहूंगा कि अब इन 10 दिनों में थोड़ा सा अपना स्लीपिंग टाइम बढ़ा लो. राइट? 8 to 9 hours. Have a proper sleep, because the bent of mind that is required for clearing this exam is a fresh mind, a creative mind, a mind which is ready to think, concentrate and focus. अगर नहीं सोच पाओगे तो वहां पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे. ठीक है? और उन्हीं की वजह से हमारा पेपर जनरली रह जाता है. तो 24 घंटों को हमें कैसे डिवाइड करना है? 8 to 9 hours of sleeping, 3 to 4 hours for yourself, your daily chores, then remaining 11-12 hours a good hard work. अभी इतना परिश्रम कर दो, इतनी मेहनत कर दो कि कल हर कोई आके पूछे how did you prepare. Right? This is, and the last don't is don't ignore your physical and mental health. As in, how the mental health can be ignored? You are talking to people who themselves are negative. देखो, ये जमाना है कंफर्टिंग लाइज का. ठीक है? हो सकता है जिससे तुम बात कर रहे हो उसकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो. राइट? एंड यू आर गोइंग एट राइट ट्रैक. सो डजंट मैटर वेदर यू कॉल्ड हिम और ही कॉल्ड यू. लेकिन क्या होगा? क्योंकि उसकी पेसिमिज्म है एक आवाज में, तुम्हारा भी मोटिवेशन एंड मोरल डाउन हो जाएगा.
ठीक है, भले ही वो कोई भी हो, कोई फैमिली मेंबर हो, कोई फ्रेंड हो, कोई तुम्हारा कॉर्पोरेट जॉब से कोई फ्रेंड हो कि यार क्या रखा है लाइफ में, इतना पैसा है प्राइवेट में, डोंट लेट एनीबडी गेट यू गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ नेगेटिविटी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे मेंटल हेल्थ मैनेज हो जाएगी। और फिजिकल हेल्थ कैसे मैनेज होगी? यू हैव टू हैव 3 प्रॉपर मील्स अ डे, कुछ फ्रूट्स, जूस, वाटर, टेक फ्रिक्वेंट वाटर इन बिटवीन, और बीच बीच में स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, उससे तुम्हें एनर्जी बनी रहेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ लेट्स कम ओवर टू डूज। डूज में सबसे पहला है, जनरली वी आर स्वेड अवे विद द टेंडेंसी ऑफ शिकारी भेड़िया। देखो शिकारी भेड़िया क्या होता है ना, ज्यादा ज्यादा और ज्यादा। नाउ ग्रीडीनेस इज अ बॉटमलेस पिट, राइट? हमें इस चीज को कंट्रोल करना है। डोंट बी स्वेड अवे विद योर डिजायर्स ऑफ कवरिंग मोर एंड मोर। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सक्सेस इज doing limited things unlimited number of times. And what is failure? Emanating from the same definition, the failure is doing doing unlimited things limited number of times. इसमें क्या होता है कि the resources, we are not wise enough to focus upon and to have a clear cut idea that these 15 sources are important for the exam and I am going to focus on only these 15 sources. अगर ये नहीं कर पा रहे हो, दैट इज अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। और अभी तो खासकर कीप इन टच व्हाट यू हैव लर्नड ऑल थ्रू दीज इयर्स। डोंट पिक एनी न्यू सोर्स, और रादर विच यू हैव नॉट सीन बिफोर, राइट? दिस वुड बी अ वेरी बैड स्ट्रेटेजी, आई एम टेलिंग यू। सेकेंड इज, तुमने कुछ अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी दैट हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एग्जाम। मान लो तुमने कोई स्ट्रेटेजी सेशन लिया हो, जैसे मेरे साथ लिया हो, ठीक है, किसी और के साथ लिया, कुछ तुमने अपनी ट्रिक्स बनाई है, उन स्ट्रेटजीज को एक पेपर में लिख लो और कम से कम 1-2 बार गिव देम अ ग्लांस। 1-2 मिनट लगेगा, इसको देखो, इससे होगा क्या देखो। दिस विल ऑटोमेट योर बिहेवियर। वहां पे तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी इन योर फ्रंटल लोब एंड रेडी टू कम आउट। तो अगर स्ट्रेटजी क्लियर है हमारी, तो हमने आधा वॉर जीत लिया। ठीक है, third point is mental rehearsal. Now mental rehearsal is something like the act of playing out the entire scenario in your head. ठीक है, कि कैसे तुम एग्जाम हॉल में बैठोगे, तुम्हें कैसे पेपर को स्क्रूटनाइज करना है। अगर पहले के 10 क्वेश्चन टिपिकल आ गए, डिफिकल्ट आ गए, तुम्हें नहीं आते हैं, तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है। यू डोंट हैव टू बी पैनिक, डेली यू हैव टू गिव दिस फीडबैक टू योर माइंड। अगर नहीं करोगे तो वहां पे देखो, अगर ये मेंटल रिहर्सल नहीं कही ना, मेंटल रिहर्सल एक अपने आप में एक ब्रांच है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में, राइट? और आजकल तो ये हर फील्ड में है। नाउ मेंटल रिहर्सल इज समथिंग दैट यू हैव टू विजुअलाइज योर सक्सेस। रिप्लेस शुभम कुमार विद योरसेल्फ। ये सोचो कि कल तुम अगर सक्सेसफुल होते हो, ऐसे ही तुम्हारे टाउन में, तुम्हारी सिटी में, तुम्हारे विलेज में तुम्हारा ऐसे आवभगत करी जा रही होगी। And also learn from the humbleness and simplicity of this topper Shubham Kumar, that see the background that from what he comes from and see the confidence and the feat that he has achieved. अगर शुभम कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, और वैसे भी कोई भी कर सकता है। फिर हम आते हैं अपने 5th पॉइंट पे, प्रिपेयर योर टूल किट फॉर द एग्जाम। जनरली इसमें टूल किट में क्या आता है? योर पेन, पेंसिल एंड एवरीथिंग दैट यू वांट टू हैव, योर फोटोग्राफ, योर आधार, योर एडमिट कार्ड, हॉल टिकट। लेकिन 2 जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो जनरली हम मिस कर देते हैं, वो है हमारा एक व्हाइटनर और दूसरा जनरल मेडिसिन। नाउ व्हाइटनर इज समथिंग विच नो वन शुड अवॉइड टेकिंग टू द एग्जाम हॉल। अगर तुमने कभी गलती से कोई गलत डार्कन कर दिया सर्कल विदाउट आस्किंग एनीवन कि सर व्हाइटनर अलाउड है, सीधे उसको व्हाइटनर से करेक्ट कर देना। एट टाइम्स इन्विजिलेटर्स डू नॉट नो, बिकॉज देखो the main problem of our country is that we have less literacy. Nobody knows how the OMR software works,
how these are scanned and what is the logic behind the OMR. वो तुम्हारा इंप्रेशन रीड करता है. तो अगर तुमने व्हाइटनर लगा दिया, उसका इंप्रेशन नहीं बनेगा, वो काउंट नहीं होगा. मान लो अगर तुम्हें आंसर नहीं भी आता है और तुम्हें लगता है मैंने गलती से डार्कन कर दिया है, तुम्हारा एक नेगेटिव क्वेश्चन गलत होने से बच जाएगा. ठीक है. और दूसरा है जनरल मेडिसिन. सपोजिंग तुम्हारे सराउंडिंग्स में उस दिन एग्जाम सेंटर के आसपास बहुत हल्ला गुल्ला है. ठीक है. इतना एग्जॉस्ट हो गए कि सेकंड सिटिंग में के पहले हेडेक हो गया. राइट. तो उसमें क्या होगा कि यू कैन टेक सम जनरल मेडिसिन विद यू. ठीक है. सो दीज आर 5 डोंट्स एंड 5 डूज व्हिच यू हैव टू फोकस बिफोर गोइंग टू द एग्जाम हॉल. एंड ट्रस्ट मी दैट जैसे कि हम लोग एक लाइफ में कहते हैं कि कुछ चीजें बांटने से बढ़ती हैं और कुछ चीजें बांटने से कम होती हैं. ठीक है. जैसे दुख देखो बांटने से कम होता है, अगर खुशी है वो बांटने से बढ़ती है. ठीक है. दुख बांटने से बढ़ता थोड़ी है. वैसे ही अगर हम गरीबी को बांटेंगे लोगों में तो गरीबी बढ़ेगी, और अगर हम अमीरी को बांटेंगे तो ये हमारी सोच है कि अमीरी कम हो जाएगी. इसलिए तुम्हें जो इस समय बांटना है लोगों में, अपने कुछ अच्छे दोस्तों में, वो बांटना है पॉजिटिविटी. अगर पॉजिटिविटी बांटोगे तो तुम खुद भी पॉजिटिव रहोगे, और पॉजिटिविटी इन एंड अराउंड यू will make you will put you in a very strong frame of mind which is required to clear prelims. So this is all about this interaction. If you want to discuss anything with me, a very specific thing, there would be a number on the discussion part. You can drop a WhatsApp message on that number. Stay blessed, keep working.